Good. Okay, so this is my workspace. That is the D drive core 1. So you have to click on OK. Automatically Eclipse will start loading the workspace. So let me tell you some of the basic parts of Java that just like a brush up for you. So we are starting the class from the data types. So in Java we have a totally 8 data types. That is the byte, sort, Mhm. int, Mhm. float, Mhm. long, Mhm. double, Mhm. character, and boolean. Mhm. And for each data type we have a default value. So default Mhm. value in the sense, if you're not initializing your variables, then by default it will Mhm. take some value. So Mhm. let's say I will show you some of the example. Mhm. Let's develop a new application, that is Java project. I'm going to Mhm. discuss a bit about the local variable. So I'm giving the project name as a local variable. Go to SRC, right click, new class A. So we have a scope of a variable that is known as there is a two types of scope of any variable, that is local and global. So the variable which is declared inside your class body itself, that is known as global variable, and the variable which is initialized or declared inside your main method or any function body or any constructor body, that all are known as local variable. So inside my class right now we have one global variable, that is I, and another one is the local variable j. So if you print SOPJ here, then output will be simply coming as you know 10. Let me change the value for this local variable, that is 20. So if I run this, then it will give me the 20 as output. Now, so this is declaration plus initialized in one shot. If you are interested, you can do it into the two way also. That is the two basic. But let me again tell you, I equal to 20. That is also make the j equal to 20, and it will give you the same output. But do you know what will be if I am declaring the variable and I'm not initializing it? Can you guess what will be the output and whether this program will compile or not? Hello? Sorry, I was on mute. So it would be compiled. Okay, it will be compiled if I'm not initializing the variable and if I'm printing it. You are declaring it. It should compile. Should compile, but let me tell you the very important rule for local variable. If you're not initializing the local variable and if you're trying to print it, you will get a compile time error. So there is a ground rule. If you have the pen and notes with you, then write down this point. Local variables should must be initialized before used. So you can see here you are getting a compile time error, in the sense compiler is saying you should not allow to use this j till now you are not initializing if it is a local variable. This rule is not applicable on the global variable because global variable is taking the default value. The reason behind is I will tell you later once I will be discussing about the memory management, why local variables should must be initialized. If you have initialized and you didn't using that J, then compiler is not having any issue. But once you have initialized, I mean declared, and you didn't initialize and you are trying to print the local variable, you will get a compile time error, and this is one of the ground rule that you have to remember. Fine, Sudhanshu? Mhm. Okay. Can you repeat again? What did you say about the
Javier? Local variable must be initialized He, before use. Mhm. But if you are not using and you have declared only, that will not create any problem for you. The Mhm. issue is without initialization, if you are using, then it will create a problem. It will not create a problem for you once you have declared and you are not using. So you can see right now I have declared the j as a local variable, but I'm not using this, so compiler is not giving any issue for me. It's not giving any compile time error. But once you are trying to use that and make sure that it's supposed to be initialized at the time of declaration or after declaration, or you can initialize like this way also, that is also possible. So both three way to initialize your local variable: after declaration, at the time of declaration, and at the time of printing also. Done with this small concept local variable. Mhm. Yeah. One question here. Why do we need to have initialize the local variable but not global variable? That's what I'm saying. Local variable is not taking their default value. So what is happening whenever you are No. having something, you know, Uh, my look. question, my question here is that is the only one reason. Hmm. It is not taking the default value. That's why it is not getting. Okay. This is one the answer, but if you go deeper, then there is one more answer. Think from the real-time Mhm. perspective, then you will be understand. This word itself, Mhm. local, is making sense that can be used inside your method body in which you have declared, right? So local Mhm. is always stands for the one person can use that. So Mhm. if you are taking any local variable, then compiler is thinking if I give default value, then it might be create a computational error for a user. Assume the things. Since it is an integer, the default value for this is a 0. If compiler will give a default value for local variable also, and you are doing some calculation based upon that local variable, then entire result will make a 0 for you. So local is always saying I will be used by that certain block, certain method for a specific region. So compiler is waiting for you. If you want to use this local variable, then you are responsible to give the value for that. Similarly, if you see the final variable in Java, then there doesn't matter if it is a global also, compiler will not give you value. It is not taking default value. So if it is a final variable, let me tell you here, if I am making this variable as a final, and if I am not initializing it before final variable, let me tell you, if I am not initializing, it will not give any problem for me. Since it is a global, it will take the default value. And if you want to use this, that also you can do, but since it is a non-static, so you have to create a object for this class, and then after you can write sop a1.i. It's not creating any problem for you, but what I'm trying to do, I'm going to make it as a final, then you will get one error. So again compiler is saying if you are making a final, then I'm not going to give a default value for this. And whenever any variable is not having default value, you should not allow to use that. So since it is a global, so and you make it as a final, then the rule is coming, it should must be initialized. Till now you will not initialize the global variable which is a final, you should not allow to compile your program successfully. Similarly for a local variable also, if you are not using, then it's okay. If you are using, since it is not having any value, and that is the reason you should have to initialize it first, then only you can use this. And it's make any sense. If you're going to print certain variable, then it's supposed to have some value in the memory, and if it is not having, then you should not allow to print that. Understood? Sudhanshu, are you there? Hello. I don't have any problem.
you're not showing me your online Excel. Just now I finished one session. 2 hours session. There's no anything. Yeah. Are you able to listen me? Hi. What is that? Initially your sound was coming, so it's me talking. So, फाइनल वेरिएबल अगर हम यूज भी नहीं कर रहे हैं कहीं हमने सिर्फ वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ओनली as like in case of local variable. We just declared we are not using it. Do still we need to have an initialized it or we don't we need to have an exactly. Local variable अगर आप initialize नहीं करते हो, then it depends on you कि आप उसी function block में आप करो या ना करो, it's reflect only that function body, right? But if it is a global variable, then we can't predict which function is using this variable and which is not. So probably, if it is not initialized, then it will create a problem for another function also. So that's the reason. Doesn't matter. It's a final variable. I mean, if it is a global variable and final, you have to initialize. Doesn't matter you are using or not. We can't wait for the prediction because if you think from the real-time perspective, one function, one class is used in many places. So definitely it will create a problem. That's the reason it's a rule you have to remember. So you understood about local variable? Yes. Next point I want to discuss about is static and non-static along with the global variable. So let's say I have one class. In this class I have a static int I equal to 10 and int j equal to 20. So as we know in class there must be two types of members, one is static and another one is the non-static. And now if you're trying to call this static I, the compiler will not give you any error, and if you run this it will run directly because static members are all rounder. You don't need to bother about the static member a lot because once it is static then it can be used inside your class directly anywhere. But if you think from the deeper perspective, then internally actually it's not alone. Internally, of course, there is a class name. This is not the right way to use the static variables or static member. If you bring your cursor here, then you will find out what exactly internally. यहाँ पे actually में class का नाम होना चाहिए. This is the right way to use your static variable.
बट अगर आप नहीं भी लिखते हो then compiler is saying I will write for you internally. So अगर मैं इस b को हटाऊं भी and I bring my cursor here, you can see internally it is a class name dot I. So I just want to tell you one point here that is a very strong point. Static members are dependent on class name and non-static members are dependent on object. So whichever member On of object, non-static object. yeah. So non-static members are dependent on object and static members are dependent on class. So doesn't matter if it is a variable or a function, all are, I mean, this rule is applicable for everything. Now you can get a bit answer about, do you know why main method is static? This is a very important question asked by the interviewer many times. Yes, Have any yes, answer? yes, yes. Main method is static. Actually, all just a minute. Let me think. Let me think. I know this. Uh, no other object will call this method, so that's why it's a static method. It will be by default. It would be called like this. That's partially right. The second answer is right. You know that main method is going to be called by our JVM. And if it is a non-static, then JVM also have to create the object first of your class, and then after they have to call. And assume in your class there is a 100 non-static member, then during the object creation, all non-static member will be unnecessarily loading into the memory. Since it is static, so it's independent, JVM without creating your class object, they can call your method outside that class, outside that class without the object. So this is the one answer. Apart from that, there is one more answer about the static that I will tell you later. During the memory management, the point is static members are loading into the memory only one time, and non-static members are loading into memory every time whenever you are creating an object. So let's say this J, if you think from the J perspective, whenever this program will start compiling, that time itself this I and main method will be loading into the memory. That time this J is not going to be loaded. Once you create an object, that time itself only this J will be loaded into the memory and it will initialize by 20. Assume I am going to create an object of B class 100 times, then 100 copy of J will be available inside your memory for each object. And that is the reason one more answer is there. Static members are loading into memory only one time. It is not wasting my memory not wasting my memory. That is the reason main method is static. Understood? जस्ट अच्छा आई और जे दोनों को क्लास नेम के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट? नहीं. So now we are going to do the same experiment. Now what I'm trying to do, just like I'm going to print the J. As you can see, you are getting an error because I told you very clear point. Non-static members are dependent on object, and J is one of your non-static member of your class, so you should not allow to call J directly. Another answer I told you. Till now, we will not create a object. This J, it will be not loading into your memory. Then how can you print that? So before using the non-static member, you must have to create the object of your class. Then only you will be able to access this. So now you have to write here b1 dot j. Just like a static member, don't expect key compiler will write the class name here, so it will also write the object name here. This is not possible. Till now, you will not create your object. You should not allow to call the any non-static member of your class, and this is the right way. One very interesting point I would like to share you is that can we call a static member by object? Say I. Can we call b1.i? What will be? If you call b1.i, it will not generate any error for you. But it's not the right way. You will get one warning. So as you can see the yellow color mark in Eclipse, it is saying you whatever things you are trying to do, that is not the actual way. The static field b.i should be accessed in a static way.
So even though you are trying to call your static member by object, it will not give any compile time error, but internally it will be always a class name. And you can see here again compiler has modified your I with the class name. So idea is very clear. Static member can be called directly with the help of class name or with the help of object, but make sure that internally every time it is a class name only. For non-static member, it is always mandatory. You have to create an object, then only you can use inside the static method. This is also important point. If you're trying to use the J, let's develop one user-defined function test. Since this test method is also a non-static, so here if you are printing I or G, it will not create a problem. Problem is with the static functions. If you make this function as a static, even test also, you have to create a object. Non-static can be used inside non-static members directly. Once it is a static, then the problem is starting. See here again you will get error for J. So this is the concept behind this small program, and I believe this is the topic you're supposed to be very confident what exactly is static and what exactly non-static stands for. One of my students has asked very good question, like, sir, we have many lots of benefit with the static, like it's independent of the object and it is loading the memory only one time. It's not wasting our memory a lot. Then why should not we have only the non-static member inside my class? Do you have the answer, Sudhanshu? Non-static members of the class. Do you understand my question, what I'm trying to ask you? Yeah, I understand. All of the benefits with static, then why do we need to have Non-static other member types inside of my class. non-static members? Non-static global members. Global. Okay. Hmm. So, Static. since we are dealing with the object-oriented programming language, so Mm-hmm. the features of object-oriented programming language like encapsulation, polymorphism, abstraction, inheritance, these all are a object-wise operation. So, the answer is, if it is a static, then it will not participate in your any of the features of your object-oriented programming language. Since inheritance is also process in which we are accessing the properties of one object into another object. So if it all are static, then you should not allow to play around the features of object-oriented programming language. You can't do inheritance concept, you can't do polymorphism, you can't do lots of things which is related to your object-oriented. So the answer is, to make non-static is only makes sense to play around the object-oriented features. Since static members are not participating in inheritance, it is independent of object, and wherever object is not came, it's not allowed to play any features of object-oriented programming language. Anyhow, it will be clear more once I will be discussing about the memory management. Fine. So as you can see here, this test method is also static. So if you are trying to call this function here, you can call directly, no problem. But as I told you, internally again here is a class name. Whether you are writing or not, if you see, if you bring your cursor here, you will find out there is internally a b.test. So every static member is supposed to be called with the help of class name. It is always a good practice. But in the same class, if you're trying to call directly also, it will not create a problem for you. अच्छा निकित, इसमें स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है क्या? हाँ, वैल्यू तो किसी की भी चेंज हो सकती है अगर वो फाइनल नहीं है तो। अगर फाइनल बना दिया तो आप नहीं कर सकते हैं। सिंस इट इज ग्लोबल स्टैटिक का भी बहुत आदमी का ये कंफ्यूजन है, मैंने देखा है कि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होता है, बट इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ योर स्टैटिक वेरिएबल आल्सो। ठीक है? अच्छा, स्टैटिक की भी वैल्यू चेंज हो सकती है। स्टैटिक की वैल्यू चेंज स्टैटिक मेथड में ही होगी? नहीं, अभी मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको नॉन स्टैटिक बना दूँ तो
पहले तो इसे ऐसे नहीं कॉल कर सकते। देखो अभी मैं आई की वैल्यू नॉन स्टैटिक में चेंज कर रहा हूँ, इट विल नॉट अफेक्ट एनी मोर। कहीं भी चेंज कर सकते हो। स्टैटिक इज जस्ट लाइक ए ऑलराउंडर, यू कैन चेंज, यू कैन यूज एनीवेयर इनसाइड योर प्रोग्राम, ठीक है। बट द वैल्यू व्हिच यू आर चेंजिंग दैट विल रिफ्लेक्ट एंटायर योर प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप j की वैल्यू चेंज करोगे यहाँ पे, आई एम गोइंग टू राइट b1 डॉट j इक्वल टू 40, that 40 value will be only applicable for this b1 object. If you create here b2 object, then for b2 still the j value will be 20. Okay. Fine. But static here also, once you modified here 23, and later in main method, if you're trying to, after calling this function, let me show you. After calling this function by b1 object syso, and I'm printing the I, do you know what will be the output here? 23. Exactly. That's what I want to tell you. The modification of static members is happening globally, and modification of non-static members is happening object-wise. So that is the main idea behind this. Fine. Okay. Check it out the output. You can see the output. Okay. The last output is 23. Class level पे है, non-static उस level पे. Okay. Clear? हाँ, clear. Okay. So fine. नेक्स्ट प्रोग्राम मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, इट्स रिलेटेड टू द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ओनली। एक और पॉइंट आप देख लो कि लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी स्टैटिक। आप कभी भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते, इट इज ओनली फॉर ग्लोबल वेरिएबल। आप देखना चाहते हो तो लेट्स सी, मैंने लिखा स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 10। आप देख सकते हो आपको एरर आ रहा है। सो आइडिया इज वेरी क्लियर, स्टैटिक कैन नेवर बी ए लोकल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टैटिक मेंबर जब क्लास आपका लोड होता है उसी टाइम में लोड होता है, और नॉन स्टैटिक मेंबर तब लोड होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सो अगर आपने इसको लोकल बना दिया इस आई को, then this will be loading once this function will be called, and rule is saying कि static supposed to be loaded at the time of class loading। इसी वजह से हम इसको स्टैटिक नहीं बना सकते। बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है कि what will be if my static member static int I equal to 20। मेरा लोकल वेरिएबल का भी वैल्यू सेम है और ग्लोबल वेरिएबल का भी वैल्यू सेम है, and then if I'm trying to print a I here, then which I will be accessed, whether global वाला और whether local वाला? Local होगा. लोकल होगा, of course लोकल होगा कि एक और रूल है, local is always having more priority than global। Now can you tell me how I'm interested in global, what I have to do here? How can we access the global value? C.I. Very good. So if you want to access the global I, you have to explicitly mention C.I, then compiler will understand you are interested in global value. If you not write C.I, then it will give you the local value. Clear? So this were the small things about static and non-static you're supposed to know. You can have a lots of example. I will be dropping with this all application for core Java programs. There you will find the lots of practice session, and probably in class and object folder you will have a lots of questions, lots of programs, small programs. You can refer these all programs and check it out what are the things going on. So getting any doubt, let me know. Fine. ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग आपको पता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग सेम नेम बट डिफरेंट। अच्छा, इसे दो डिफरेंट क्यों कहते हैं? फंक्शन और मेथड मेरे ओपिनियन में दोनों सेम है, बोथ आर सेम, देन व्हाई डू वी से दैट बोथ आर डिफरेंट? नहीं, डिफरेंस तो है। एक्चुअली क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ।
फंक्शन सी एंड सी प्लस प्लस में जो भी एक क्लियर पॉइंट आप लिख लो, जावा में जो भी होता है JDK 1.7 तक वो सारे के सारे मेथड होते थे। फ्रॉम JDK 1.8 आप कह सकते हो कि जावा इज आल्सो हैविंग ए फंक्शन। फंक्शन एंड वेरिएबल में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। आपको जावास्क्रिप्ट पता है? नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं पता है। नहीं, जावास्क्रिप्ट पता है। फंक्शन को आप कभी भी किसी वेरिएबल पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, मेथड को। फंक्शन वो होता है जिसको आप, जैसे आई का यहाँ पे आपने वैल्यू देखा, अभी मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल। सो इस लोकल वेरिएबल में आप क्या कर रहे थे कि आई के वैल्यू को, आप इस वैल्यू को आई को इनिशियलाइज कर रहे थे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कहलाता है, जैसे आपने लिखा int I इक्वल टू void test। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, मैं इसको इनिशियलाइज जो भी टेस्ट की वैल्यू वो असाइन कर रहे हो वेरिएबल आप को उसको। दे रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल इन मेथड। JDK 1. और ये जो काम हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। These are the features available in the functional programming. If you see like Python, like Pascal, R, JavaScript, these are the functional programming language where you can initialize your function to any variable also. Like in JavaScript also, I will show you. Probably you will be knowing, you will understand, not knowing. So जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हम लोग कंसोल में लिखते हैं, ब्राउजर में ही लिखाता है ये। दिस इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन ब्राउजर। यू कैन सी आई एम राइटिंग वेयर आई इक्वल टू फंक्शन abc, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं अलर्ट फंक्शन विच विल गिव मी ए पॉपअप बॉक्स। हाय, जस्ट अ मोमेंट। फंक्शन abc alert unexpected, एक सेकेंड। फंक्शन abc alert अच्छा, आई एम मिसिंग वन। parenthesis that is okay, it is supposed to be like that in this. सिंटैक्स का एरर है कुछ। Syntax error is there. I'm calling abc, it will give me one pop-up box. Here you can see hi, this is alert box. So I can define this function like this way also, where abc equal to abc like this. So idea is function can be initialized to any variable, but method cannot be. This is the major difference. Understood? So from JDK 1.8 you can do same thing whatever I did right now in the JavaScript in Java also, but since I have a JDK 1.7, so I can't do like that. So understood the difference between function and method? Method cannot be initialized to any variable, but function can be initialized to any variable. अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक बात ये बोलूँ कि मेथड से भी हम कुछ रिटर्न कराते हैं। हाँ, मेथड से, हाँ, रिटर्न तो दोनों में होता है, फंक्शन में भी होता है एंड मेथड से रिटर्न कराते हैं, फंक्शन से भी रिटर्न कराते हैं, तो दोनों तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही हैं, तो दोनों तो एक ही टाइप का काम कर रही हैं। नहीं, करेक्ट? आप वो नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जैसे ये काम कर रहा था, ये फंक्शन को मैंने डिफाइन किया
और इस फंक्शन को डिफाइन करके मैं किसको दे दिया, आई को, एक वेरिएबल, हाँ ठीक है, आई को दिया, तो ये आई आपका रिटर्न नहीं ले रहा है बल्कि ये पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब भी आप इस आई का यूज करोगे उसका मतलब ये फंक्शन पिक्चर में आएगा। जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तभी तो रिटर्न आएगी ना। बट हियर आई एम नॉट कॉलिंग, मैंने फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को एक वेरिएबल को दे दिया। जो वेरिएबल हमारा अब इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जहां भी मैं आई का यूज करूंगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये इसका रिटर्न टाइप देगा, बल्कि ये पूरा डेफिनेशन आपको देगा। सो ये कह सकते हैं क्या कि इसमें एक वेरिएबल में पूरे फंक्शन का जो भी फंक्शनैलिटी थी वो उसमें एग्जैक्टली डाल दिया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये फंक्शन ही हो सकता है, फंक्शन में ही कर सकते हैं आप मेथड। अच्छा, एक बात यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हमको, इवन तो ये जावा स्क्रिप्ट का है, अगर मुझे आई यूज करना है तो आई को मैं कैसे कॉल करूंगा? जहां पे भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, वहां पे आप इसको आई को यूज करो। जहाँ भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यानी आई को हमें यूज करना होगा। करेक्ट। तो एक तरह से ये कह सकते हैं क्या कि ये एक वही मैं वहाँ जहाँ जैसे हम आई को कॉल करेंगे उसी तरह वहाँ मेथड के नेम को कॉल कर लेंगे। हाँ कर सकते देखिए, टाइप्स ऑफ ऐसा ही हुआ, टाइप्स ऑफ ऐसा ही हुआ। लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ गया ना कि आपको बार बार डिफाइन नहीं करना। लेट से वही फंक्शन आपको दूसरी जगह चाहिए सेम सिग्नेचर के साथ, तो आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा ना दूसरी जगह पे। सो ओके, इट विल बी मोर क्लियर, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये चीज, सिंस जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो एक्चुअली फंक्शनल प्रोग्रामिंग मैंने भी थोड़ा बहुत स्काला पे, तो स्काला में मैंने देखा कि ये फंक्शन को इन्होंने इस तरह से बोल दिया, लेकिन मेरे को फंक्शन और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। देखिए कुछ पॉइंट है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। in मैं आपका इसका लिंक भेजता हूँ अच्छे से, आप उसको रेफर कर लेना, ठीक है? हाँ तो और क्लियर हो ठीक है, मैं, हाँ इस पे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं, हाँ अभी अपना ट्रैक से नहीं हटते हैं। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरलोडिंग ये बताता है आपको कि जैसे आप देखो इस प्रोग्राम कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को, इसमें तो मैंने नहीं दिया मेथड ओवरलोडिंग, प्रोबेबली ये हो, हाँ फंक्शन का नाम सेम है बट आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट है। सो आइडिया इज यू कांट गिव ए डुप्लीकेट वेरिएबल, आई मीन डुप्लीकेट फंक्शन नेम, डुप्लीकेट वेरिएबल इनसाइड द सेम क्लास। सो अगर आप इस दोनों फंक्शन को देखो, दोनों मेथड को देखो एक्चुअली, तो this looks same. So once you compile without the duplicate method inside your class, then it will give you compile the error. Idea is very clear कि during calling compiler will get confusion कि which method I need to call. So compiler is saying even though you want to use the same function name, then at least try to change the argument. First एक अगर आपने नाम चेंज कर दिया then it's okay. But क्वेश्चन ये है कि आई जस्ट वांट टू यूज द सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट। मेथड नेम हमारा सेम होना चाहिए, then probably you have to change the argument. This part is known as argument. So you can see here all function name is the same but they are all are having the unique argument. That is okay, and this is known as a function overloading. Got it? रिटर्न टाइप Return type will not reflect anything inside your method overloading. Make sure that many people are believing कि अगर मैं test function को ही रखूं and same thing रहे, argument should be same, but I will change the return type. So make sure that it will not work. This is not a part of method overloading. आप देख सकते हो एरर अभी भी आ रहा है एंड इट्स मेक सेंस। रिटर्न टाइप तब पिक्चर में आता है जब आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, बट हियर कंफ्यूजन इज ड्यूरिंग कॉलिंग इटसेल्फ।
जब आप कॉल करोगे फर्स्ट वाले या सेकंड वाले को तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1.test a1.test, तो कंफ्यूजन तो पहले आ गई ना। So return type will not a part of method overloading. Make sure that. So it doesn't matter you are changing your return type, it will not reflect the function method overloading. Method overloading. अच्छा, जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर मेथड के अंदर क्या क्या देखता है? कंपाइलर मेथड के अंदर नहीं देखता है, बल्कि पूरे प्रोग्राम को इट इज चेकिंग सिंटैक्टिकली इट इज करेक्ट और दो इन्वायरमेंट होता है जावा के अंदर, एक होता है कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट और दूसरा होता है रन टाइम इन्वायरमेंट। कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट का चेक करना है कि प्रोग्राम शुड बी सिंटैक्टिकली करेक्ट, और रन टाइम इन्वायरमेंट का काम होता है कि प्रोग्राम शुड बी लॉजिकली करेक्ट। अगर आपका प्रोग्राम लॉजिकली इनकरेक्ट है तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन देगा, दैट विल सी इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आपका प्रोग्राम सिंटैक्टिकली गलत है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, सेमीकोलन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये सारे चीज कंपाइलर का काम है जो सिंटैक्टिकली आपके प्रोग्राम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। सो दैट इज द थिंग्स। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, क्या बिजनेस लॉजिक है, वो कभी नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ पे लेट्स से कि आपने लिखा int I इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0, ये कंपाइलर को देखने का काम नहीं है, वो कभी नहीं देखेगा कि ये 10 डिवाइडेड बाय 0 करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। उसके लिए ये भी एक इंटीजर नंबर है और ये भी एक इंटीजर नंबर है, ये उसके लिए सिंटैक्टिकली करेक्ट है। लेकिन अगर ये फंक्शन, अभी मैं इसको आर्गुमेंटेड बनाता हूं, अगर ये फंक्शन int रिटर्न लिखा हुआ है और इसने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, तो अब आप देखो कि यहाँ पे आपको एरर आएगा। कंपाइलर कहेगा कि बॉस ये अगर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, ये रूल किसी ने मुझे पहले से बता के रखा है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर को सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है, सर्टेन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर ये फंक्शन में वॉइड है और आपने रिटर्न कर दिया, दैट विल आल्सो विल गिव यू ए प्रॉब्लम, ये भी आपको प्रॉब्लम देगा, ये भी सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट हुआ कि आपका फंक्शन वॉइड है, इसका मतलब रिटर्न नहीं करेगा एंड यू आर ट्राइंग टू रिटर्न समथिंग। लेकिन एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग आपको बता दूं कि अगर आपने रिटर्न लिखा है और कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहे हो, देन इट्स ओके। ये बहुत कम आदमी को पता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि वॉइड के लास्ट में जाके रिटर्न लिख देता है, दैट इज ए कंप्लीटली यूजलेस लाइन। इसको हम बोलते हैं अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो रिटर्न सिर्फ कीवर्ड लिख लिया आपने, उसके बाद कुछ रिटर्न नहीं किया, देन इट्स ओके। But if you are giving some value, then syntactically it is incorrect because your function is void and you are trying to return some integer value. और अगर आपने integer return type लिखा और आपने return नहीं किया, that is also making the point like you are not returning some value. So idea is very clear. Syntactically your program is supposed to be correct. Understood? तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो डाउट था कि whether we can change the return type in function overloading and it will considered as a function overloading, then the answer is no. It will be completely dealing with the argument section. Function overloading is the process in which we are having same method name or function name and with the different argument, different number of argument or different type of argument also. जैसे कि number of argument in the sense एक बार आपने integer दे दिया तो आप दोबारा एक ही आर्गुमेंट नहीं दे सकते क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। बट हाँ, एक बार आपने इंटीजर और एक बार डबल दिया तो वो ओके है, ये कंसीडर होगा। उसी तरह से अगर आपने दो इंटीजर आर्गुमेंट दे दिया, ये भी कंसीडर होगा क्योंकि मैंने कहा नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट। ठीक है? So this is the things you again work on this. This is the method of loading concept of Java. एक और है मेथड ओवरराइडिंग दैट विल सी आफ्टर दिस सेशन। मेथड ओवरराइड का ठीक है, चलो मेथड ओवरराइडिंग मैं आपको अभी बताता हूँ कुछ देर के बाद। फिलहाल आप मेथड ओवरलोडिंग समझो। पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज इन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, बट आई थिंक यू आर क्लियर नाउ इन मेथड ओवरलोडिंग। फाइन? If you are okay with this method overriding, then probably you will be okay with the constructor overloading also. So it is just like a method overloading. Constructor overloading में भी हम लोग
डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका आर्गुमेंट चेंज करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, कंस्ट्रक्टर में आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट इन कंस्ट्रक्टर. oh so you want the brush up on constructor? Yes. Okay, fine, we'll cover from beginning. Even आप बताते या ना बताते मैं आपको बताता, क्योंकि the person who is confident in constructor also, I found they are having the lots of confusion. So after this we'll start the constructor as a topic, but I just have one model program. Since in method we have a 4 categories, that is without argument, without return type, with argument, without return type, with return type, without argument, and with return type and with argument. So these are the 4 categories of function, and I have a example of calculator which is going to give you the all categories of this function. So you can consider this function, it is a without return type since it is a void, and without argument because the argument section this is empty. So this is considered as a without return type and without argument. The second function, that is a subtraction, which is without argument but with return type. So here I am adding 2 variables after initializing, and then after storing the result in C, and finally I am printing the sum equal to C. Here everything is same. Instead of printing this SOP here, I am returning my result to the caller. So wherever this function will be called, the result of this function will be transferred to that variable. Multiplication is a function which is without return type and with arguments. So whoever will call this function or method, they have to pass 2 integer variable, and on the same 2 integer variable I am multiplying and storing the result in C. Since it is not returning, so I have printed the result here itself. The last one is the very important, that is the with argument and with return type. In real time, 90% method we are expecting in the same manner. We need to pass certain parameter, and based upon that certain business logic, I am expecting that function as a result. So whatever things it's doing inside this function, I don't mind. I have to pass 2 variable और मुझे इसका result चाहिए. So 90% case in the real time we are having this quality of this category of function, that is with return type and with argument. Now you can see in the main function how I am calling. Add function को बस call करना है because it's not returning any value, इसलिए subtraction function हमें return कर रहा है value, तो मैंने इसको store किया है इसमें, और main method is responsible now to print the result. Multiplication भी कोई return नहीं कर रहा है, but उसको 2 parameter चाहिए, वो मैं भेज रहा हूँ, and same for division. It will take your parameter and it will return the result in division. So if you run this program, you will get a all result here. Clear with all categories of function? Sudhanshu, I'm here. you are okay or you have some doubt? I'm not okay. I have a question here. Come on. First of all, ये static में क्यों defined है? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं. It's not mandatory. अगर आपको that is the only one reason. Object नहीं बनाना चाह रहे. That's all. Okay. और एक बार ऊपर कर, हाँ, उसके बाद ऐड में हम आर्गुमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐड के लिए भी तो हमें दो वेरिएबल चाहिए ऐड करने के लिए, तो उसमें और सब्जेक्ट में यहाँ देखिए, तो मैं आपको चारों कैटेगरीज बता रहा हूँ ना, तो मैं पहला बताया. अच्छा, तो ये मतलब एक डेमो टाइप का कैटेगरी के लिए. एग्जैक्टली. ओके, ठीक है तब. ओके. इट्स ओके. नाउ इट्स ओके. फाइन. तो ये था आपका फंक्शन ओवरलोडिंग and with the demo example of every categories of a function. So now I am going to start your constructor part. Again, I have one folder with the name of constructor. So constructor can be defined like
constructor is a definition block or a function which is mainly used for initializing the member variable. This is the standard definition of a constructor. But in Java, we have one more definition for this constructor that I will be telling you later. So what exactly constructor is looks like? It's supposed to have a class name. Whatever your class name is. Niket, first of all, tell me what is the constructor and why do we Just a moment. I'm getting some disturbance. The aeroplane is going on. Ask me. Yeah, I am just asking. First, tell me what is the constructor and why do we need to need it, Okay. and why do we need in any program? So that is the that uses I will give you later. So you can see the last program I have the uses.java. Are you able to see? So just go according to my flow. You will get the example Okay. where we require this constructor. So right now the first question you ask, what is constructor? That is important. Constructor is a definition block or a function, you can also say. Constructor is a function which is mainly used for initializing the member variable. And you will be clear about this definition. First of all, you have to remember the rules for constructor. There is a certain rules for constructor. The rule number first, constructor name should be the same name whatever your class name is there. So since my class name is A, so you have to keep the class name here. I told you constructor is a function, so function symbol is this one. So it's supposed it should must have the open parenthesis and close parenthesis, and then after open braces and close braces like this. Now, second rule is saying it should not have any return type. You should not have to give any return type here. This is completely wrong. So constructor is not having any return type. Rule number third, we can't call constructor. जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल किए थे टेस्ट फंक्शन को, उस तरह से आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते. कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग वंस वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. रूल नंबर 4, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड. सो दीज आर द रूल्स, आपको याद रखना है. तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया है. एक मिनट, ये रूल नंबर 3 जो आपने बोला कि कंस्ट्रक्टर नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप, या लेकिन ये कुछ रिटर्न करता है. इंटरव्यू क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता है? नहीं, कंस्ट्रक्टर कभी रिटर्न नहीं करता है. मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे void लिख दिया तो many people are considering कि ये रिटर्न करना है, लेकिन if you ask to me then it is completely wrong. ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, बल्कि ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं, it becomes now your method of your class. कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न नहीं करता है. इट्स नेवर पॉसिबल. अगर आपको इंटरव्यू में ही है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या ये रिटर्न कर रहा है. ऐसा पॉसिबल है? आपको एरर आ रहा है कि नहीं? निकेत, किसी ने मेरे से पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ. आपको पूछा माइट भी, इंटरव्यू में हमेशा ये भी पूछा जाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए. सो यू सपोज टू बी वेरी क्लियर कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है. द थिंग इज दैट कि आप इसको कॉल ही नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने अभी आपको कहा कि कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड वंस वी आर क्रिएटिंग ए, और वो एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करता, इम्प्लिसिटली रिटर्न करता है. एक्सप्लिसिटली नहीं करता, इम्प्लिसिटली करता है. व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिटली? Could you explore it? डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते. शायद हमें उसे वो जो कंपाइलर का बाइट कोड्स वगैरह वो वहाँ पे कुछ होता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं उसको. कुछ ऐसा होता है. आई एम नॉट 100% श्योर, बट ऐसा कुछ होता है. ठीक है, मैं आपको लिंक भेजूंगा उसका जहाँ से मैंने देखा था. जरूर आप भेजना, लेकिन मैं आपको 100% बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है. इंटरनली स्पेशली आपको जब मैं यूज बताऊंगा कंस्ट्रक्टर का कि आखिर इसका यूज क्या है, तभी आप समझ पाओगे. तब आपको लगेगा कि कहीं पे इसको रिटर्न करने का मतलब ही नहीं बनता है.
कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमें क्यों जरूरी है, इसका जब आंसर आपको मिल जाएगा देन यू विल बी वेरी श्योर हमें कंस्ट्रक्टर को रिटर्न कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल आप बस इतना देखो कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। मैं इसके अंदर बस एक सिंपल सा एसओपी लिख रहा हूं, दैट इज द cons1। ठीक है, as per my rule number 4, the constructor we can't call, it is automatically executing once we are creating an object. So can you tell me what will be the output of this program? A print main, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर cons1 cons1 and main, very good. So जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर आप कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया तो आप देख सकते हो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। आप अपनी क्लास में कितने भी कंस्ट्रक्टर डाल सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही डालो या दो डालो, यू कैन कीप n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर बट मेक श्योर दैट एनी कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट टिल यू आर नॉट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट आल्सो। कैन यू गेस व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ? cons1 and main. Very good. So 2 times you are creating object, then make sure that 2 times your constructor will be called. Now what will be? एक और रूल मैं आपको बता दूं कि without constructor you can't create a single object in Java. ये भी एक रूल है जिसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अभी आप देखो कि without constructor we can't create a single object. in Java. Okay. तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया है एंड आई एम पासिंग वन पैरामीटर हियर। अब आप देखो कि कंपाइलर आपके क्लास में इट इज सर्चिंग कि एक तो इस नो आर्गुमेंट वाले के लिए ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर है। So as per my rule I told you without constructor you can't create a object. So इसका मतलब आपको एक और कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट आपको इंटीजर देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस समय आप इंटीजर पैरामीटर पास कर रहे हो। सो आइडिया इज वेरी क्लियर कि अगर आप 10 ऑब्जेक्ट बना रहे हो और 10 का पैरामीटर डिफरेंट है तो 10 कंस्ट्रक्टर आपके पास होने चाहिए। So now first object is for first constructor and second object is for second constructor. So now if I run this program, you will get the output cons1, cons2 and main. And this is known as constructor overloading. You can see here also name is same but argument is different. Yes or no? Like this way you can play around the constructor overloading just like method overloading. एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट, एक डबल, एक इंटीजर, एक फ्लोट, लाइक दिस वे यू कैन प्ले। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर के लिए पब्लिक, स्टैटिक या स्टेप की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल क्लास नेम के साथ हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक आप आराम से लिख सकते हो, प्राइवेट भी लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते। जब भी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसका क्या है, वही एक डिजाइन पैटर्न होगा जो मैं आपको सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के तहत बताऊंगा कि व्हाट विल बी मेक माय कंस्ट्रक्टर एज ए प्राइवेट। अभी आप बस इतना समझो कि जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है वो डिफॉल्ट होता है, एंड पब्लिक तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पैकेज का नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्टर, अच्छा, तो ये डिफॉल्ट है। हाँ, अभी डिफॉल्ट है। एग्जैक्टली। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, इसका एक्सेस मॉडिफायर जो है वो आपका डिफॉल्ट है। ओके, एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कांसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल ये प्रोग्राम आप देखो, आप समझे इस चीज को? हाँ, मैं समझ। तो दैट्स व्हाट cons2 and main। करेक्ट। तो जो मैंने लास्ट रूल आपको बताया उसमें मैंने कहा कि विदाउट कंस्ट्रक्टर वी कांट क्रिएट ए सिंगल ऑब्जेक्ट इन जावा। But you can ask me one question, निकित, अभी आपने कहा कि without constructor we can't create a single object, लेकिन इस पहले वाले प्रोग्राम में we have created a many object and we was not having any constructor over there.
yes or no? वो कंपाइलर वो बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेता है ना। एग्जैक्टली तो आपको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्या आपको नहीं हाँ। पता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर नहीं है इसका मतलब ऑफ कोर्स है, जब आप कोई कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में नहीं डालते हो, then compiler is keeping one constructor for you and that constructor is known as default constructor of your class. So अगर आपको देखना है इक्लिप्स में, तो सिंपली आपको क्लास बॉडी में जाके कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है देन व्हाई इट्स नॉट गिविंग आउटपुट। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। अभी भी तो हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं देन आउटपुट विल बी ओनली मेन, and if someone is asking you whether this constructor is executing or not, then what you will tell, yes or no? यस। Of course yes, because इसके अंदर कोई SOP स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आपको आउटपुट नहीं आएंगे। लेकिन it will be completely wrong to say कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। उसी तरह से आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कुछ इसी तरह से दिखता है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आप देखो कि आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी SOP स्टेटमेंट नहीं है, इसी वजह से आपको कंस्ट्रक्टर का आउटपुट नहीं दिख रहा है। सो देयर इज ए ग्लोबल रूल, जावा के अंदर ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर ना हो। ठीक है, so in every class there is one constructor which is always a no argument, means your compiler आपको बस एक ही कंस्ट्रक्टर डालता है जो है no argument, and that constructor is known as default constructor। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अगर हम a2 इक्वल टू न्यू a11 डालते हैं तो हमें स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर डालना ही पड़ेगा, तो हम डिफॉल्ट ऑब्वियसली पे भरोसा नहीं कर ये तो सकते। मैंने आपको दिखाया अभी। अगर आप ओके। a2 हाँ, अगर ठीक है। आप दिखा किया तो देखिए यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो एरर आ रही है कि नहीं। कंपाइलर कह रहा है कि हाँ, इसके लिए तो कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके लिए कहाँ है। कंपाइलर सिर्फ ठीक है। आपके लिए नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर डालता है जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब आप एक भी एडिशनल कंस्ट्रक्टर डालोगे, एडिशनल ऑब्जेक्ट बनाओगे, देन यू मस्ट हैव टू डिफाइन वन योर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ कि ऐसा ही करता हूँ, मैं इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, जिस कंस्ट्रक्टर का मैं एक आर्गुमेंट देता हूँ, दैट आर्गुमेंट इज ए इंट आई। प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, यस नो? नाउ हाँ, अब यस सर। कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर आदमी ये चीज नहीं जानता है, तो अब आप फ्लो के साथ चलो। ये कंस्ट्रक्टर हम डाले या ना डाले, दैट इज बाय डिफॉल्ट इनसाइड माय प्रोग्राम, यस और नो? यस, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इट विल बी हैंडल। It will be handled by the compiler, yes or no? Whether we are keeping or not, this is यस, default यस, यस। constructor. The default constructor is already there in my program, so let it be deleted। अगर मैंने डिलीट किया तो आप देख सकते हो कि आपको पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी एरर आना शुरू हो गया। ये क्या है, इस चीज को समझिए, दैट इज द हिडन पार्ट, मेनी पीपल आर नॉट नोइंग। रिसेंटली हमारी कंपनी में एक बंदा है, 7 साल एक्सपीरियंस, और उसको ये बात नहीं पता था। वो हमेशा ये बिलीव करता था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसी भी सिचुएशन में जावा के अंदर होता है। लेकिन वहां पे एक ट्रिक अच्छा, है जो आपको याद रखना होगा। कंपाइलर तभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालेगा आपके प्रोग्राम में जब तक आपने कोई अपना कंस्ट्रक्टर नहीं डाला है। जैसे ही आपने एक अपना कंस्ट्रक्टर डाल दिया, explicitly if you have defined any constructor, then make sure that default constructor is not there. You have to now mention about your first constructor also, नहीं तो compiler आपको बोलेगा कि boss I don't have constructor for your first object also। अगर आपने इसको हटा दिया तो default constructor आ जाएगा, लेकिन अगर आपने अपना कोई भी कंस्ट्रक्टर डाला तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपको सारे ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा, इवन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपको ही डालना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट? सो दिस इज द वेरी interesting and strong point about the default constructor. Default constructor will be appear inside your class. Till now you didn't get any additional constructor inside your program. Once you get any constructor, then make sure that default constructor will be removed by the compiler and it will be not appear there.
ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो, तो उसी तरह से और भी यहाँ पे प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, यू कैन प्ले अराउंड दिस। ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बड़ा वाला प्रोग्राम, एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको नहीं पता हो ये चीज। आप यहाँ देखो कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर दिया है जिसका आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर है, राइट? इंट। तो आई हैव टू पास वन इंटीजर नंबर, करेक्ट? And that integer करेक्ट। number is coming in picture and it is going to print your I. If I run this program, then probably the output will be 67, cons 2 and main. Yes or no? यस 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 यस। What I'm trying to do is, मैं यहाँ से एक float value देता हूँ और actually it's a double, तो of course आपको error आएगा, क्योंकि जैसा argument है वैसा ही आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। This is the global। अगर आप यहाँ से स्ट्रिंग भी पास करोगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर कहेगा कि आपके आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर है एंड यू आर पासिंग द पैरामीटर इज स्ट्रिंग। दिस इज नॉट प्रॉपर, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कैरेक्टर पास कर रहा हूँ। जब मैंने कैरेक्टर पास किया तो इट्स सपोज्ड टू गिव वन एरर, बट आप देख सकते हो कि आपका एरर नहीं दे रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली, देयर इज वन स्मॉल लॉजिक बिहाइंड दिस। जब भी आप कोई कैरेक्टर इंटीजर को देते हो तो उसका आस्की वैल्यू उस इंटीजर में आता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप कैरेक्टर पास कर रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। इंटरनली एक आस्की वैल्यू 65 होता है, जो 65 जाकर के इसको इनिशियलाइज करेगा। सो दिस इज द स्पेशल केस जहां पे आप इंटीजर को कैरेक्टर पास कर सकते हो, बट इंटरनली इट विल टेक ए आस्की वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये क्या एप्लीकेबल हर जगह होता है? हर जगह। अपार्ट अगर अपार्ट आप कॉमा भी डालोगे, अगर आप सिंगल कोट में कुछ भी डाले तो उसका आस्की वैल्यू इंटीजर को मिल जाएगा। ओके। और अगर कुछ गार्बेज डालते हैं तो? गार्बेज मतलब क्या डालोगे? मतलब कोई अनरीडेबल सिग्नल टाइप का, इस टाइप का डालते हैं कंप्यूटर जिसका में आस्की वैल्यू नहीं पॉसिबल है, जिसका आस्की वैल्यू नहीं पॉसिबल है। कीबोर्ड में ऐसा कोई भी सिंबल आप बता सकते हो जिसका आस्की जो दिया हुआ है और नहीं, उसका, अगर हम कॉपी पेस्ट करके कहीं से डालें, कॉपी पेस्ट ऑफ कोर्स जिसका आस्की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, दैट विल प्रोबेबली गिव यू द यू नो एक्सेप्शन, नॉट एरर। ठीक है? अच्छा, एक्सेप्शन देगा। ओके। So this is the concept you have to remember about this ASCII value. So if someone is saying you to develop a program in Java for ASCII value, this is a very simple program. आप इंटीजर को ASCII वैल्यू दे दो और ऑटोमेटिकली आपका ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा। I mean कैरेक्टर दे दो और ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा। यस? एक मिनट। अगर जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया और मैंने यहाँ पे एक आस्की दिया और उसका मेरे को करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो हमें कास्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी? इवन दो यू विल नॉट गेट। आप ये पूछ रहे हो कि रिवर्स वे में क्या ये पॉसिबल है, राइट? क्या मैं यहाँ पे कैर और यहाँ पे ASCII वैल्यू दे सकता हूँ, तो whether it will be acceptable or not, ये आप पूछ रहे हो? It is never नहीं, possible. मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आस्की की वैल्यू दी और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ जो एसओपी है वहाँ पे मैंने उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्टर होता है वो प्रिंट कराना चाहा। यहाँ मैंने इंट ही दिया, कैर आई की जगह हमने इंट आई दिया, और लेकिन एक की जगह मेरे को 65 प्रिंट कराना है। 65 की जगह मेरे को ए प्रिंट कराना है, सॉरी 65 की जगह मेरे को ए प्रिंट कराना है। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ऑफ कोर्स है। उसके लिए आपको स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। वी हैव ए फंक्शन विद द नेम ऑफ कोड एट पॉइंट और वैल्यू एट, उसको कोड पास करो, आस्की वैल्यू दो तो कैरेक्टर देगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं कैरेक्टर, बस मैं पैरामीटर के बारे में आपको बता रहा हूँ अभी, इसमें आप सब एक्सचेंज कर सकते हो बस इंटीजर और कैरेक्टर में। बाकी हमारे पास फंक्शन है, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको आप आस्की वैल्यू दो और वो आपको उसका कैरेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग देगा। ठीक है? ठीक है। तो ये आप समझे? हाँ, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको सुधांशु सेशन? सही जा रहा है या यू आर फीलिंग यू आर नॉट कंफर्टेबल और आपके नहीं, अभी तक तो एक्चुअली निकेत, टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो मेरे को पहले से पता थे, लेकिन आई एम एंजॉयिंग सेशन।
नहीं, जो चीज आपको इस समय नहीं पता था वो उतना आप समझ रहे हो अच्छे से। हाँ, वो चीज मेरे को समझ में आई, वो चीज मेरे को समझ में आई। डोंट वरी, हमारा सेशन ऐसा ही चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ योर कोर्स। आप यू विल बी गेटिंग ईच हाँ। कंसेप्ट लाइक दिस वे ओनली, वेरी क्लियर। ठीक है, हम्म, हम्म। चलो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस केस में क्या होगा। कैन यू गेस द आउटपुट हियर? एक्चुअली मैंने एक क्लास बनाया है और इस क्लास का मैंने हटो ये टेस्ट मेथड आई डोंट वांट। दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक है आर्गुमेंटेड एंड दूसरा है नो आई मीन वन आर्गुमेंटेड। So of course make it as an integer. Now we're clear with this. So for avoiding the confusion. So one class is there, copy, and we have two constructor. One is no argument, another one is the one argument. So straightforward, if I run the piece of code after commenting this, it will give me the copy and the value which I'm passing, that is 7. Now what is this 17th line of code is saying? Whether we are creating a new object कॉपी or what? C2, कॉपी C2 इक्वल टू C4 आपका वहाँ पे, हाँ न्यू ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको समझना है। इनफैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब तक जावा में आप न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते तब तक आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं, वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो कि मेमोरी में पहले से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है C4 उसी पे आप दो रेफरेंस लगा रहे हो। सो मेमोरी में सिर्फ रेफरेंस पास कर रहे हैं। करेक्ट, इसको हम लोग ओके रेफरेंस बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, एंड ऑल टुगेदर ये कहलाता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो, इसलिए C4 का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं होगा दोबारा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है तब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप रन कराओगे तो बस दो बार आपको वही आउटपुट आएगा जो पहले आया था। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है, और जब तक ऑब्जेक्ट मेमोरी में नहीं बनेगा तब तक आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। इसको अगर आप C++ के लैंग्वेज में बोलो तो इसको हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में इस स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ उसका एक रेफरेंस C2 एग्जैक्टली एक और रेफरेंस बना दिया है। एग्जैक्टली जो मेमोरी में हमारा लिंक बना हुआ है ना, कुछ इस तरह हाँ, से तो आप देखो अब C4 को हम C2 के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली अगर आप ये अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डाल रहा हूँ int I इक्वल टू 23, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने C1 डॉट I इक्वल टू 34, ठीक है, और यहाँ पे लिखा C4 डॉट I इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा C1 डॉट I तो हमें आउटपुट क्या आएगा? 34 आएगा, ऑफ कोर्स आएगा 34 आएगा। अब यहाँ पे अगर आपने लिखा C4 डॉट I तो क्या आएगा? C4 डॉट I ये 90 नहीं एक मिनट, हाँ 90 आएगा। 90 आएगा। और अगर मैंने लिखा C2 डॉट I तो क्या आएगा? C2 सेम को 90 आना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ कि मेमोरी में ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहा है, नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है। नया ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ मेमोरी वो रेफरेंस पॉइंटर एक एग्जैक्टली जैसे लॉक आपके एक हैं और दो की हैं, उस तरह से समझो। ठीक है, तो ये आपका लॉक बहुत अच्छा है, आपका एग्जांपल है। तो समझा आपने इस चीज को? हाँ ठीक है। चलो, तो इसी को हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब आप पूछ रहे थे कि यूज क्या है आखिर कंस्ट्रक्टर का। आपने देखा आपने देखा कि हमें जब कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम में है हमारा वैल्यू ऑटोमेटिकली आई मीन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब एज्यूम करो कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिस समय
हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें किसी भी क्लास का, उस टाइम में हमारे क्लास का सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। जैसे टेक वन रियल टाइम एग्जांपल, अगर आपके एक बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कोई कस्टमर अगर अकाउंट खोल रहा है, तो अकाउंट बैंक के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो उस अकाउंट क्लास का जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतना कस्टमर होगा, राइट? उस अकाउंट में एज्यूम करो कि हम डिटेल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर। तो कस्टमर के आई मीन कोड पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो उस कस्टमर क्लास का जितना ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उतना कस्टमर हमारे पास बैंक में एक्टिव है। लेकिन आइडिया ये है कि अब इस यूज क्लास को आप कस्टमर क्लास समझो, चाहे मैं एक क्लास ही बनाता हूं कस्टमर करके, दैट विल बी फाइन। कस्टमर क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर मैंने दिया इंट अकाउंट नंबर, उसके बाद दिया स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और एक और दे देते हैं इंट एज। ठीक है, अब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये तो मेरा एक क्लास हुआ और इस क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड लिखा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है कि मेरे बैंक में एक बंदे ने अकाउंट खोला, तो ऑब्वियसली इस कस्टमर के साथ ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज रैप है। दैट्स व्हाट द एनकैप्सुलेशन इज सेइंग। एनकैप्सुलेशन कहता है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वी आर रैपिंग द मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट। तो ये ऑब्जेक्ट इंटरनली ये सारे को रेफर कर रहा है और अकाउंट नंबर, फर्स्ट नेम, एज सारे कस्टमर का सेम तो होगा नहीं, इट विल बी डिफरेंट, राइट? तो मेरा आइडिया ये है कि जब हम कस्टमर को अकाउंट खुलवाते हैं उसी समय हम उससे सारे वैल्यू लेंगे। लेट्स से अकाउंट नंबर मैंने लिया 1 2 3, उसका फर्स्ट नेम मैंने लिया ABC और उसका एज लिया मैंने 24। ये एक कस्टमर का डिटेल्स है। मैं चाहता हूं कि जिस समय हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसी टाइम ये सारा वैल्यू जाकर के मेमोरी में स्टोर हो जाए इस कस्टमर के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपके पिक्चर में आएगा। करना ये है कि आपको एक कस्टमर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसका 3 पैरामीटर होगा, अकाउंट, उसके बाद स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और इंट एज। अब आप जरा गौर से देखो, अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पे बहुत चर्चा किया। इस कंस्ट्रक्टर के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि 3 आर्गुमेंट और 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। हाँ। करेक्ट। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिससे जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ ये वैल्यू इसको जाके इनिशियलाइज कर दे। अब ये सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल है, इसका मतलब सबके पास डिफॉल्ट वैल्यू है। सबके पास डिफॉल्ट वैल्यू है क्योंकि इंटीजर है, ग्लोबल है, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू होगा 0। से स्ट्रिंग है तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा नल। डिफॉल्ट वैल्यू है। एक्चुअली थोड़ी सी आवाज नहीं आई थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में बात कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि जिस समय कस्टमर का अकाउंट खुल रहा है उसी टाइम ही ये वैल्यू इस कस्टमर को ये सारे के सारे मेमोरी में जाके C1 स्टोर कर ले अपना सारा वैल्यू। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट अकाउंट इक्वल टू ACC, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब जरा गौर से देखो कि जब जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ये सारा वैल्यू आकर के इसको मिला और ये सारा वैल्यू जाकर के इसको इनिशियलाइज कर दिया। एंड दैट इज द एक्चुअल यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कहता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उस समय आप वैल्यू पास करो मुझे, जो भी वैल्यू आप दोगे मेमोरी में कुछ इस तरह से आपका पिक्चर बनेगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा स्केच करके।
तो यहाँ पे आपका जो C1 था, जो कस्टमर आपका C1 है, वो यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस, सॉरी अब समझ लो मुझसे नहीं हो रहा है अच्छे से, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, माउस दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है, और यहाँ पे आपका एज है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा पॉइंट कर रहा है इस कस्टमर के लिए। अच्छा, अगर अब मैंने C2 बनाया, एज्यूम कीजिए मैंने C2 बनाया, तो C2 का भी ऐसे एक मेमोरी एलोकेट होगा जो कुछ इस तरह से, एक सेकंड में शायद माउस से अच्छा पकड़ सकूं। हाँ, लेट्स से कि आपने एक और कस्टमर बनाया C2। C2 क्या करेगा, अपना डिटेल्स यहाँ पे स्टोर करेगा, क्योंकि अकाउंट नंबर सबका डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। फर्स्ट नेम भी सबका डिफरेंट होगा और एज भी सबका डिफरेंट होगा, और ये काम आपका कंस्ट्रक्टर करता है। अब आप जरा कोड में आके देखो एक बार फिर से। अरे यार, ये तो यहीं पे स्विच हो जाता है। ठीक है, सिंस आई एम न्यू इन गो मीटिंग, सो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो अब देखो कि ये कस्टमर जब अकाउंट अपना खोला तो ये सारे के डिटेल्स कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज किया और उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया। अगर दूसरा कस्टमर ऐसे ही अकाउंट खोलेगा C2 का भी ऑफ कोर्स डिटेल्स डिफरेंट होगा, इसका डिटेल्स होगा 3 4 5 XYZ एंड समथिंग समथिंग, यही काम कंस्ट्रक्टर फिर करेगा। इस तरह से जितना आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहेगा उतना कस्टमर बनते रहेगा, और उतना बार कंस्ट्रक्टर आपका वैल्यू ले लेकर उसको इनिशियलाइज करेगा। अच्छा, सो दैट इज द एक्चुअल यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। रन टाइम में ये आपके वैल्यू को लेकर के इनिशियलाइज करता है और मेमोरी में स्टोर करता है, और इसलिए मैंने आपको कहा था। अच्छा, अब हम एक लाइव एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। लाइव एग्जांपल में एक बैंक है, एक बैंक में कस्टमर आता है, न्यू अकाउंट, नॉर्मल बात करते हैं, न्यू अकाउंट ओपन की बात करते हैं। तो न्यू अकाउंट ओपन में आप ये कहते हो कि इस ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे और ये वैल्यू पास करेंगे और वो जाकर के इस अकाउंट को ये सारी वैल्यू कहीं पे मेमोरी में एलोकेट कर देगा। ऑब्वियसली। अब मैं बात करता हूँ, मेमोरी में एलोकेट तो कर दिया, लेकिन फाइल में, मैं फाइल की बात करता हूँ, क्योंकि जब तक मेमोरी में एलोकेट हो गया कहीं पे एलोकेट हो गया, लेकिन जब तक वो फाइल में नहीं आएगा, इस टाइप से ये चीज कैसे कोरिलेट होती है? अच्छा, तो ये तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बता दिया कि मेमोरी में एलोकेट हो गया, और मेमोरी में, लेकिन एक बैंक में एक कस्टमर आया, वो कस्टमर का जो भी रिकॉर्ड था, फॉर एग्जांपल ये हम यही 3 फील्ड लेके चलते हैं, अकाउंट नेम, फर्स्ट नेम और एंड एज, ये फाइल में कैसे जाती है? अब फाइल में जाने के लिए क्या करते हैं? I understood your point, what you're trying to ask. ये जो पार्ट है बेसिकली फाइल में नहीं, हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जो हमारा एक टेबल होता है। वही मतलब हमारे उसमें ऑब्जेक्ट में फाइल कहते हैं, ठीक है। हाँ, डेटाबेस में जो भी है, डेटाबेस में, हाँ, ठीक तो है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली जब आप पहला कस्टमर बनाते हैं तो हम हाइबरनेट जब आप पढ़ोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ लेना। जब हम इस ऑब्जेक्ट को बना लिए तो हमारे पास हाइबरनेट और डेटाबेस एक फंक्शन देता है जिसका नाम है सेव, और इस सेव में हम अपना C1 जैसे ही डालेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पूरा जाकर के, इसका सारा वैल्यू जाकर के हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और अगर आप फाइल की बात कर रहे हो तो फाइल तो मैं आपको क्या ऐसे चलेगा? क्या सेव में क्या चलेगा? सेव जो आपने फंक्शन कॉल किया है, इसमें क्या चलेगा? मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, अभी ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट डालना है, और हाँ। ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने बताया कि इंटरनली वो किस किस को पॉइंट कर रहा है, ये सारे वैल्यू को पॉइंट कर रहा था ना ड्राइंग जब मैंने बनाया था। एग्जैक्टली, तो इनडायरेक्टली आप अपनी सारे वैल्यू भेज रहे हो,
अब डेटाबेस में जो बंदा बैठा है, जो वहां पे प्रोग्राम कर रहा है, वो इसमें से एक एक वैल्यू निकालेगा और वो अपना कॉलम में डालेगा। ये अकाउंट टेबल में जाएगा, ये फर्स्ट नेम कॉलम में जाएगा और ये एज वाले कॉलम में जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंट फ्रेमवर्क व्हिच इज डेटाबेस इज डूइंग। आपका काम बस इतना है कि इस कस्टमर के ऑब्जेक्ट को भेजो। कस्टमर का ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली ये तीनों वैल्यू होल्ड कर रहा है और ये तीनों वैल्यू लेकर के वो डेटाबेस में जाएगा और इसके 3 कॉलम को फिल कर देगा। दैट्स व्हाट द फ्लो इज वर्किंग। अगर आप फाइल में चाहते हो तो फाइल तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। जब मैं आपको फाइल में नहीं बताऊंगा तो सेम एग्जांपल आप मुझे याद कराना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हर कस्टमर का एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइल में डालते रहेंगे और हमारा डेटा कैसे स्टोर होते चला जाएगा। इट्स वेरी इजी। फाइल मतलब मेरा मतलब डेटाबेस से ही है। फाइल हम लोग उसको फाइल बोलते हैं। नहीं, मेरा यूजली मतलब हम लोग फाइल में भी रखते हैं। जैसे आप देखो बहुत सारी कंपनी है जो अभी भी डेटाबेस नहीं मेंटेन करती है, फ्लैट फाइल ही होता है। अब बहुत बार आपको एक्सेल सीट में डेटा मेंटेन करना पड़ता है। सो डेटाबेस इज अ पार्ट ऑफ कोर्स, बट अगर आप चाहो तो आप रिकॉर्ड ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो। अब छोटी छोटी चीज के लिए तो हम हमेशा डेटाबेस नहीं रखते हैं, फ्लैट फाइल होता है हमारे पास। नहीं, अगर हम वो तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो डाटा अगर लॉस हो गया तो फाइल में रखने से। ठीक है, वो तो डेटाबेस भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन सिंस आप तो डाटा हडूप लॉस हो। पढ़ने जा रहे हो तो हडूप में तो फ्लैट फाइल का कोई चर्चा ही नहीं है। सिंस इट इज डीलिंग विद बिग डेटा, तो वहां पे तो और बड़ी चीज है। इस चीज को अगर आप समझोगे तो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे आपने रिक्वायरमेंट में डाला है कि मुझे थोड़ा जेडीबीसी का भी कंसेप्ट चाहिए, तो उस समय मैं आपको सेम एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे हम लोग डेटा को डालते हैं डेटाबेस में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये दिस कीवर्ड जो आपने डाला है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अच्छा, तो दिस कीवर्ड आपको नहीं पता? नहीं, ये पता है कि ये इसी को पॉइंट कर रहा है। अगर हमने दिस मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या जो भी मतलब इसके लिए हो रहा है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है? नहीं करते हैं तो क्या होता है? वेरी गुड। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसका भी एग्जांपल। जरा गौर से देखिए। सॉरी निकेत, मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मेरे को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अरे जरूर यार, तो आप ज्वाइन क्यों किए हो? अपने डाउट क्लियर करने के लिए ना। सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क ए क्वेश्चन एंड आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। डोंट फील कि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं हाँ, एंग्री तो हो मैं जाता स्टूपिड हूँ। क्वेश्चन भी पूछूंगा, सॉरी। आप पूछो, नो वरी, जितना पूछना है पूछो क्वेश्चन, ठीक है। अब हाँ। जरा यहाँ गौर से देखो। मेरा आइडिया ये है कि यहाँ से जो मैं 12 वैल्यू पास कर रहा हूँ, वो वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर को दूं। ये पैरामीटर जाकर के इस एज को वैल्यू दे रहा है, राइट। और ये वाली जो एज है आपका, वो इस एज को इनिशियलाइज कर रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं u1 डॉट एज, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल द आउटपुट हियर? नहीं। नहीं आइडिया है आपको, बट अब जरा गौर से देखो। मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू जाकर के किसको दे रहा है। जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो तो आपको पता है कि जो भी वैल्यू आप पास करते हो उसके आर्गुमेंट में जाके आ जाता है। सो यहाँ से 12 जाकर के सीधा कहाँ जाके बैठ जाएगा? एज वाले वेरिएबल में। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, आई मीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे फंक्शन ही है, आपने देखा था कैलकुलेटर वाला फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाला, इंट आई, और यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ u1 डॉट टेस्ट, और जो वैल्यू पास कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? ये आई में आ रहा है, राइट। हाँ, और ये आई क्या कर रहा है? ये फंक्शन क्या कर रहा है? बेसिकली उस आई को प्रिंट कर रहा है। दैट्स हाउ। प्रिंट कर दे रहा है। हाँ, करेक्ट। सो that's it। आउटपुट आपका 23 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो आप वैल्यू पास करो 12, वो कहाँ जा रहा है? कंस्ट्रक्टर के पास, वो ऊपर कंस्ट्रक्टर को जा रहा है, ठीक है। राइट। इस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो कि इससे लेकर के आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हो, सिंस अभी ये डिफॉल्ट वैल्यू है। मेरा आइडिया ये है कि जो यूजर ने भेजा है उस वैल्यू को लेकर के हम ग्लोबल वाले को दे दें, ठीक है। ठीक और है। अब जब आप यहाँ पे u1 डॉट एज कर रहे हो, तब तो आप इस ग्लोबल वाले को एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि ये तो लोकल है इसका, और लोकल तो हमेशा इसी में होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट 12 आना चाहिए, लेकिन वो 0 जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने तो आपको क्योंकि कहा हमने कि यहाँ से जो वैल्यू जा रहा है वो इसको इनिशियलाइज करेगा।
तो ये डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्यों आएगा? सुधांशु, यू आर राइट, ऑफ कोर्स यू आर राइट। अगर आप इसको रन कराओ तो आपको 0 ही आएगा। अब यहीं पे आपका दिस कीवर्ड पिक्चर में आता है। अब जरा गौर से देखो कि ये ग्लोबल वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम दोनों सेम है कि नहीं? अब कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज है कि आप किस साइड में लोकल को डालें और किस साइड में ग्लोबल को डालें। हमेशा लोकल की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, जो मैंने आपको बताया। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि इस लोकल से हम ग्लोबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यही लोकल फिर से अपने आप को इनिशियलाइज कर रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हो इसका कलर कोड क्या है, ब्लू, और यहाँ पे दोनों साइड क्या है, ब्लैक है। इसका मतलब आप इसी लोकल डिफरेंस होता है क्या? हाँ, कलर कोड से भी। हाँ, ये नॉलेज की बात है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी समझ जाओगे। और फिर से जब यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो तो देखो ग्लोबल वाली कॉल हो रही है। तो अभी तो ग्लोबल वाला इनिशियलाइज हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 0 है और इसलिए 0 दे रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इस ग्लोबल वाले को इनिशियलाइज करना है, तब आप दिस पिक्चर में आता है। जैसे ही मैंने दिस लगाया, देखिए कलर कोड चेंज हो गया। समझ में आया? दिस क्या करता है? दिस इज डिफरेंशिएटिंग योर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताओ मेरे को कि ये अगर हम एज की जगह, ऐसा हम करते क्यों है कि हम एज ही दें? ऐसा कुछ हम कोई उसको डिफरेंट नेम क्यों नहीं दे सकते? वेरिएबल का नाम अभी यहाँ पे हम उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जो यूज का कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ मैं इसको एज इनपुट लिख दूं और यहाँ पे जो उसके अंदर दिस एज की जगह एज और इक्वल टू एज इनपुट लिखूं, तो भी तो ये चलना चाहिए। ऑफ कोर्स चलना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है शायद कि अगर मैं दोनों का नाम सेम दे दिया हो इसलिए कंफ्यूजन है, राइट? अगर नाम मैं हटा दूं तो मुझे दिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये ऐसा क्यों नहीं करते हम, ये आप पूछ रहे हो, राइट? यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट। मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हम मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से आपको क्या पंगा होगा कि आप अगर आप देखोगे यहाँ पे इक्लिप्स का ही बात करते हैं हम, मैंने ये प्रॉपर्टीज बनाए और इस प्रॉपर्टीज बनाने के बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर हो। एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, सोर्स, सिंटर्स एंड गिटर्स मेथड। इक्लिप्स एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उसमें आप देखो क्या कर रहा है, दिस डॉट acc इक्वल टू acc। मैंने कुछ नहीं किया है। तो अगर आप नाम सेम नहीं देते हो तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू ऑलवेज, और अननेसेसरली आपका मेमोरी भी वेस्टेड होता रहेगा, क्योंकि एक बार सेपरेट इसके लिए और एक बार सेपरेट इसके लिए। अगर दिस आप डाल देते हो तो दिस में क्या होता है कि अगर लेट से आपके केस में यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें दो वेरिएबल है, एक एज है और एक एज 1 है। तो ड्यूरिंग कॉलिंग टाइम शायद वो कंफ्यूज हो जाए कि यार मैंने किसको कॉल किया था, एज वाला मेरा ग्लोबल है या एज 1 वाला ग्लोबल है। देयर इज अ कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इट्स ऑलवेज गुड कि आप ज्यादा वेरिएबल मेंटेन नहीं करो। दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन डू, नो वरी, बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप दिस के साथ यूज करो, ताकि आपका कोड मेंटेनेंस रहे और एक स्टैंडर्ड जो है वो भी फॉलो होता है। ठीक है? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हम नहीं देते, इसलिए मैंने बताया आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब बहुत जगह देखोगे आप, इवन इक्लिप्स भी जब आपका ऐसा काम करता है तो वो भी यही काम करता है, दिस के साथ करता है। तो दिस इज ऑलवेज कमिंग इन पिक्चर व्हेनेवर यू वांट टू डिफरेंशिएट लोकल एंड ग्लोबल। ओके ओके ओके, तो इतना आप देख लो सुधांशु आज। आई एम गोइंग टू बाय द क्लास नाउ। ठीक है? कल हम लोग फिर से 9 o'clock रेडी रहिएगा। कितने बजे? आज हम कितने बजे शुरू किए थे? आज तो हम 11:15 पे किया था, लेकिन एक्चुअल क्लास स्टार्ट तो अराउंड 12 हुई। हाँ, तो कल से हम 11:15 में शुरू करेंगे। ठीक है? 11, इसको हम 11 कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और मेरे को टॉपिक आप एडवांस में मेल कर सकते हो क्या कि क्या क्या टॉपिक आप कवर करोगे? आप देख लो, मेरे पास ये एप्लीकेशन है। ठीक है? इस एप्लीकेशन में प्रोबेबली जितना प्रोग्राम्स है, जितने एप्लीकेशन बने हुए हैं, ऑलमोस्ट ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए ये कवर करूं। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम बेसिक थिंग्स।
और वैसे आपके पास सिलेबस है कोर्स जावा का, तो आप देख सकते हो। आपने जो मेल किया था वो मेरे पास है, विल बी कवरिंग दीस ऑल थिंग्स। ठीक है, नहीं, एक मिनट, कैन यू रिपीट? एक्चुअली लॉट ऑफ नॉइज। क्या बोला आपने? मैंने कहा कि you have syllabus of core Java, whatever Sunny हम्म, has dropped you, and even I हम्म, have your requirement जो आपने भेजा था, so हम्म, we'll be covering the both of them। ठीक है, तो अभी ओके, तो हम लोग ठीक स्टार्ट कर है। रहे हैं, लेट मी पिक अप द थिंग्स। वो तो तब की बात है जब हम लोग ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश रहेंगे, तब देखेंगे कौन कौन सा हम्म, टॉपिक है। और मेरे नजर में आपने जो जो डाले हैं वो तो मैं कवर करूंगा ही, जो जो सिलेबस में नहीं है वो भी मैं आपको चाहूंगा कि एक दो चीज ऐसे हैं जो आप जानो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जैसे एनोटेशन हुआ वगैरह। हाँ, एनोटेशन, एनोटेशन ये काफी कंफ्यूजिंग है, मुझे हाँ, नहीं समझ में आता। तो वो सब मैं आपको खुद बता दूंगा, जस्ट ट्रस्ट करो, टाइम दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से। ठीक चलो, थैंक यू, थैंक यू। है, ठीक है, ठीक है, तो कल हम लोग 11 o'clock स्टार्ट। 11 साथ मिलते हैं। ठीक, चलो, थैंक यू। ओके, हैव अ गुड डे। बाय बाय, यू टू। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आप मेरे को भेज दोगे क्या? रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, भेज दूंगा। ये हाँ, प्रोग्राम भी रिकॉर्डिंग मैं तो भेज देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू। बाय।